Hello friends, welcome to my YouTube channel The Learning Adda. Today I am here with my first chapter in Bio Class 12. The name is Reproduction in Flowering Plants. In this chapter, one by one, we will cover so many points. Firstly, we have to start here from what is the meaning of the reproductive part of flowers. The first topic is what is flower. Flower is mainly carrying two types of parts. First is accessory parts and the second one is necessary parts. First one is accessory parts, second one is necessary parts. The rhyme words. Accessory means helping parts. Means they will help in the process of reproduction, and necessary means reproductive parts. In a simple manner, necessary parts will carry main part, that is reproductive. Accessory part will carry helping parts as like which will help in the process of reproduction. Firstly, we will explain what is the meaning of accessory parts. In accessory parts, we will study about two parts. First one is sepal and second one is petal. सेपल मीन्स जो ग्रीन कलर की मैंने दिखाई देती है, बायोलॉजिकली हम इसको कैलिक्स कहते हैं. पेटल जो फ्लावर की कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं जिन्हें बायोलॉजिकली हम कोरोला कहते हैं. कैलिक्स का काम है कि जब फ्लावर बड स्टेज में है तो उसको कवर करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये काम होता है सेपल्स का, जिन्हें हम कैलिक्स कहते हैं. कोरोला का काम क्या है? ये कलरफुल पेटल्स होती हैं तो ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और थ्रू द पॉलिनेटर्स कहीं ना कहीं पॉलिनेशन प्रोसेस होती है. मीन्स दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसीलिए हम कैलिक्स और कोरोला को एक्सेसरी पार्ट्स या हेल्पिंग पार्ट्स कहते हैं. नॉर्मली कैलिक्स और कोरोला सेपरेट होते हैं तो हम इन्हें सेपल और पेटल कहते हैं. अगर कभी ये फ्यूज्ड फॉर्म में है, मतलब कि कैलिक्स और कोरोला ऐसे अलग अलग सेपरेटेड नहीं है, तो हम उस स्ट्रक्चर को नॉर्मल भाषा में टेपल और बायोलॉजिकली पेरियंथ कहते हैं. पेरियंथ का मतलब कि जब हमारे कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स को हम के से और कोरोला को हम सी से एब्रीवेट करते हैं. तो इस तरह से जब कैलिक्स और कोरोला कैसे होते हैं? फ्यूज्ड टुगेदर, तो इसे हम पेरियंथ या सामान्य भाषा में टेपल कहते हैं. नाउ आफ्टर दिस आई विल कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज नेसेसरी पार्ट. Hope so you all note that point with me also. Okay, now necessary part or reproductive part. These reproductive part may be divided into two. First, male reproductive part, male reproductive part, and second one is
फीमेल reproductive part. First, in the male reproductive part, the unit of male reproductive part is known as androecium or stamen, and the female reproductive part unit is known as gynoecium or pistil or carpel. फर्स्टली एंड्रोसियम और स्टेमेन, जिसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, और गायनेशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब अगर हम एंड्रोसियम को समझना चाहते हैं तो एंड्रोसियम हैव मेनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एंथर, second one is connective, and the third one is filament. Firstly, I will explain these 3 terms, then I will later come to the pistil or carpel topic. Right? First, I will explain about the anther here. I wrote first anther, second was, the second part was connective, and the third was filament, right? Anther. Anther is a main body part structure of male reproductive system, means inside the anther pollen grains are arranged. So if you want to discuss here about anther, then firstly we have to know the structure of anther. Anther is bilobe. Bilobe, or you can say ditheca, या फिर इसी को कहते हैं डाइथीकस। तो ये कैसा होता है देखने में? अगर हम एक नॉर्मली डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो मतलब ये कैसा होता है? बाइलोब। हम देख रहे हैं इसमें 2 लोब है, बाइलोब है, या इसी को कह देते हैं डाइथीका। ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये दोनों लोब आपस में जिससे कनेक्टेड हैं, ये इसे कहते हैं कनेक्टिव या कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये मास होता है किसका? स्टेराइल टिश्यू का, मास ऑफ स्टेराइल टिश्यू। व्हाट इज द मीन ऑफ मास ऑफ स्टेराइल टिश्यू? मीन्स these connective tissue make a connection between these 2 lobe structure, but it will not participate in the process of reproduction. ये आगे किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर इट विल डिसइंटीग्रेट, ये खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा, साइज में इनलार्ज होगा, अंदर की सेल्स में मैच्योरेशन होगी, ऐसे एक टाइम के बाद ये जो अभी सेपरेशन दिखा रहा है, ये वॉल जो सट्टा दिखाई दे रहा है एक तरीके से, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज फिलामेंट। With the help of filament, this stamen will come to the contact with the pistil. मतलब कि स्टिग्मा पर जाकर के ये जो स्टेमन स्टिक होता है, लगता है, that is done with the help of filament structure. तो इसके बाद अब हम देखेंगे टीएस ऑफ एंथर। इंटरनली ये तो हमने आउटरली देखा भाई, बाइलोब होता है, डाइथीका होता है, कनेक्टिव टिश्यू है और फिलामेंट स्ट्रक्चर है। तो टीएस सेक्शन देखने से पहले हम इंटरनली देख लेते हैं कि ये इंटरनली कैसा दिखाई देता है।
तो मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं, टीएस ऑफ एंथर। हम क्या देखना चाह रहे हैं, एक हमने इसका एक टीएस सेक्शन ले लिया, ट्रांसफर सेक्शन लिया है एंथर का, और हम उसे देखना चाह रहे हैं। तो जब वो देखेंगे तो हमने अभी कहा था ये बाई लोब्ड होता है, कैसा हो गया ये देख रहे हैं, दो लोब में है तो बाई लोब्ड होता है, ये डाइथिकस होता है, और एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक, और दो लोब हैं तो हमारे पास कितने 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर हमें 4 माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें माइक्रोस्पोर्स, ये जो कवरिंग है पूरी इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और इसके अंदर जो इन्वर्टेड फॉर्म में हमें ये दिखाई दे रहे हैं इसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो एक एंथर के अंदर इस तरह से ये 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स मतलब टेट्राड कंडीशन, टेट्राड कंडीशन में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टेट्राड माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं, टेट्राड माइक्रोस्पोर। आपस में मैंने आपको बताया था यहाँ बीच में एक स्टेराइल टिश्यू होता है जो इनके बीच में कनेक्शन का काम करता है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह अगर आप देखिए, एक हम इसका एक सेक्शन ले रहे हैं एंथर का, तो एंथर में ये बाई लोब या डाइथिकस है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोर, मतलब 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोर हुए, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन में हुआ। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं, और इसके अंदर जो सिचुएटेड टिश्यू फील्ड है उन्हें हम माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। तो एंथर हैव 4 माइक्रोस्पोर या टेट्राड माइक्रोस्पोर कंडीशन। तो ये हो गया हमारा एक टीएस ऑफ एंथर। अब टीएस ऑफ एंथर को हमने तो डिस्कस कर लिया, इसके बाद यहाँ आगे बढ़ने से पहले मीन्स अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। कि हम अगर एक, ये तो हमने एक बाहर से व्यू लिया कि हमें भाई ये डाइथिकस और टेट्राड माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, इसमें जो लेयर्स हैं, जो ऑक्युपाइड टिश्यूज़ हैं, या डेवलपमेंट कैसे होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगी, ये सब हम अभी आगे समझेंगे। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल जो हमारे नीट से रिलेटेड है, जो हमें पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी तो हमने बाइलोब वाला समझा। कुछ एंथर्स ऐसे भी होते हैं जो मोनोलोब्ड होते हैं, मोनोथिकस होते हैं, डाइथिकस नहीं होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल को एक बार